बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, your instructor for the course of Curriculum Adaptation for Special Needs. You are here warmly welcome in the series of the lectures for the Curriculum Adaptation for Special Needs. Today is the fifth lecture of this series. My dear students, as we have earlier discussed in the different four lectures about the curriculum types and its need of adaptation, today we have to discuss about the what is the need of the curriculum actually is. You listen in the previous lectures that a curriculum refers to a defined and prescribed course of studies which student must fulfill in order to pass a certain level of education. Also, different people has explained the curriculum in a different way. So as we have curriculum, it is the refers to a proper defined and prescribed course of studies which the students have to follow. Similarly, John Kerr defined the curriculum as it is the planned and guided by the school, whether it is carried on in groups, individually, inside or outside the school. The Keir has said that the curriculum is the total learning experiences provided by the school, and also that included the content of the course, the syllabus, the method employed to teach the students, and other aspects like norms and values which relate to the way schools are organized. You have to keep in mind thus a curriculum is neither development nor a sequence of experiences. It is a plan for the facilitating learning of the students and the learners with and without disabilities. This plan starts with where the child is. It also enumerates all the aspects and dimensions of learning that are considered necessary. It gives a reason why such learning is considered necessary and what educational aims it would serve. So, to check all these things, we have to discuss, okay, why the curriculum is, why we cannot do all these things without the curriculum. Simply, you can say, what is the need of the curriculum? Let we have to move further. What is the need of the curriculum? There are here 11 reasons I have found why the curriculum is needed, why we cannot survive without the curriculum. What are the reasons? What are the philosophies? What are the basic things which enforce us to develop the curriculum? There are the 11 reasons. These 11 reasons are here. The number one is achievement of educational aims. Number two is fixing limits. Number three is development of democratic values. And the number four is development of citizenship. And number five is development of character. And the number six is satisfaction of needs. The number seven
criteria of suitable teachers. And the number 8 is selection of suitable methods. Number 9 is acquisition of knowledge. Number 10 is development of personality. And the last one is 11, which is the reflect trends in education. Come on, we have to discuss one by one all of these needs of the curriculum. The number one is, as I have recited earlier, achievement of educational aims. As I said that in the previous slides, that curriculum is a plan and the guided activities for the learning of the students. Dear students, करिकुलम हमें इस बात में मदद देता है, हमारी हेल्प करता है कि जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए हों, जो हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने प्लान कर लिए हों, उनको हासिल कैसे किया जा सकता है। जो हम इन तमाम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को करिकुलम के बगैर हम हासिल नहीं कर सकते। इसकी आपको मैं मिसाल यूं दूंगा कि एक स्टूडेंट को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उसको डॉक्टर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे किसी एक डिजीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस हासिल हो, तो फिर हम उसको डॉक्टर कहेंगे और वो असल डॉक्टर कहलाने के हकदार होगा। तो करिकुलम हमें ये बताएगा कि हमने उसे क्या पढ़ाना है। करिकुलम डिसाइड करेगा कि अगर 5 साल का MBBS है तो उसमें उस 5 सालों में वो क्या पढ़ेगा, वो तो प्लान होगा, लेकिन उससे पहले वो क्या पढ़ के आ रहा है। उससे पहले उसने क्या पढ़ना था, उसने मैट्रिक तक क्या पढ़ना था, उसने इंटर में क्या पढ़ना था, इंटर के बाद उसने मेडिकल के अंदर क्या पढ़ना था। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये करिकुलम डिसाइड कर रहा है कि आपका जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है। मैंने एक सादा सी आपको मिसाल दी है कि अगर आप एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, उस एजुकेशन एम को आपको हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका करिकुलम मौजूद होना चाहिए। तो सूटेबल करिकुलम के अगेंस्ट अगर हमारे पास प्रॉपर करिकुलम नहीं है तो हम अच्छे डॉक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट अगेन वाइस वर्सा, इफ़ वी हैव अ गुड करिकुलम तो हमारे जो लोग प्रोड्यूस होंगे, हमारे तालीमी अदारों से जो लोग निकलेंगे वो एक्सपर्ट्स होंगे, वो इनोवेटिव होंगे और आने वाले नए चैलेंजेस को फेस कर सकेंगे और बेहतर तरीके से उनसे नबर्द आज़मा हो सकेंगे। तो similarly in the absence of the curriculum it is not possible to do anything systematically। कि हमारे पास मुमकिन तो हो सकता है कि कोई अगर इसमें किसी ना किसी तरह से एक आदमी जो है वो कुछ चीज़ें लर्न कर ले, बट प्रॉपरली और फॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा एम है और जो हमारे पास जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं चीज़ें, या जो हमारे पास एजुकेशनल एम्स है, हम उनको हासिल नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास है फिक्सिंग लिमिट्स। करिकुलम बेसिकली एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि ये हमारे पास एक प्लान डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि एक बच्चे ने क्या लर्न करना है, उसकी स्कूल की एक्टिविटीज़ का पैकेज क्या है, वो क्या लर्न करेगा। अगर एक बच्चा नर्सरी क्लास के अंदर स्कूल जा रहा है, प्रेप के अंदर जा रहा है, 1 के अंदर जा रहा है, KG में जा रहा है, तो वो क्या लर्न करेगा उस ड्यूरेशन के अंदर। या यूं आप कह लें कि 4 साल का बच्चा क्या चीज़ें लर्न करेगा, 5 साल का बच्चा क्या चीज़ें लर्न करेगा, 6 साल का बच्चा चीज़ें क्या लर्न करेगा।
तो जो आपका करिकुलम है वो आपकी लिमिट्स को फिक्स करता है कि आप डाउन में बॉटम में कहाँ पर होंगे और आप टॉप पर कहाँ पे होंगे। दोनों लिमिट डिसाइड करता है। स्टूडेंट के बारे में ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट लर्न क्या करेगा, वो अपनी कितनी अगर उसकी एज होगी तो उसके मुताबिक वो क्या लर्न करेगा। वो 5 साल का है क्या लर्न करेगा, 6 साल का है क्या लर्न करेगा, 7 साल का है क्या लर्न करेगा, और टीचर उसे टीच कैसे करेगा। ऑटोमेटिकली 4th क्लास को पढ़ाने का और तरीकाकार होगा, 10वीं क्लास को पढ़ाने का तरीकाकार और होगा। और दूसरा जो टीचर के हवाले से भी डिसाइड करता है कि टीचर की पेडागोजिकल स्किल्स कौन सी होंगे, वो कौन सी अच्छी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी बेहतर टेक्निक्स हैं जो वो इस्तेमाल करे तो लर्निंग बेहतर हो जाए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी कैसे डिसाइड करेगा, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से वे आउट हैं, वो कौन सी डायरेक्शंस हैं जिनको बेस बनाकर, जिनको बुनियाद बनाकर वो अच्छी और बेहतर टीचिंग कर सकता है। उसे क्या आना चाहिए, उसकी समझ में क्या होना चाहिए। तो जो करिकुलम है दोनों चीज़ों को डिसाइड करता है, टीचिंग की बाउंड्रीज भी डिसाइड करता है और लर्निंग की बाउंड्रीज भी डिसाइड करता है। लर्निंग आपकी जो है वो आपकी एज, फिजिकल एज, मेंटल एज के मुताबिक होगी, आपकी फिजिकल ग्रोथ के मुताबिक होगी, ठीक। और दूसरी तरफ आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो डिटरमन करेगा करिकुलम कि आप कब और किस एज में किस वक्त कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात हमारे पास ये है कि करिकुलम हमें इस बात के अंदर हेल्प करता है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जनरेट करता है। जैसा कि आज़ादी की बात करता है, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लोगों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का एहतराम होना चाहिए, और किस तरह से मिलजुल कर रहना है और किस तरह से मिलजुल कर रहने की चीज़ों को पॉसिबल बनाना है। लोगों के आपस में इख्तलाफ राय हो सकते हैं, ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकती है, उनके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं उनके लिए लिबर्टी को कैसे मुमकिन बनाना है, इक्वालिटी को कैसे मुमकिन बनाना है, जस्टिस कैसे इंश्योर करना है, और दूसरों की डिग्निटी का एहतराम कैसे करना है, और लोगों को रहने सहने का जो तरीका बताने का काम है वो भी करिकुलम का है। करिकुलम इसीलिए ज़रूरी है, जो करिकुलम है वो किसी भी सोसाइटी का आईना होता है। जिस तरह की सोसाइटी होगी वैसा ही करिकुलम डेवलप किया जाएगा। चौथी बात हमारे पास है कि हमें करिकुलम की क्यों ज़रूरत है। टू डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजनशिप। Development of citizenship is one of the major responsibilities of education. कि अच्छा शहरी बनाना एजुकेशन की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर शामिल है। अगर आपका करिकुलम अच्छा होगा, सुटेबल होगा, लोगों की, या आप यूं कह लें कि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होगा, जो आपकी सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक होगा, जिस तरह का आपका करिकुलम होगा वैसे ही लोग पैदा होंगे। आपने अपने करिकुलम के अंदर जो भी कोई एक नेशन अपना करिकुलम डेवलप करती है वो ये सोच कर अपना डेवलप करती है कि वो किस तरह के लोगों को प्रोड्यूस करना चाहती है। तो करिकुलम इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोगों के अंदर महज़्ज़बपन पैदा करना चाहते हैं, अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। और अच्छा शहरी कौन सा है? जो असूलों की पासदारी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी करता है, जस्टिस के ऊपर बिलीव करता है, ऑनेस्टी पर बिलीव करता है, दूसरों के जो है वो राइट्स का ख्याल करता है। तो ये सारी बातें कैसे आएंगी? ये करिकुलम डिसाइड करेगा
कि उसने किस तरह के लोग जनरेट करने हैं। तो सिटीजनशिप इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, कि अच्छा सिटीजन बनाना करिकुलम हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम अच्छे शहरी जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, कि कोई भी दुनिया का ऐसा एजुकेशन का निज़ाम नहीं है जो कि इस बात के ऊपर ध्यान ना दे कि जो भी यूथ है या फिर नौजवान चुके किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में अपनी कौम की भागदौड़ को संभालना होता है। तो कैरेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो किरदार साजी जिसे आप कहते हैं, उसको डेवलप करना करिकुलम की ज़रूरत है। कि करिकुलम हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नौनिहालों की तरबियत कर सकें, उनकी इखलाकी तरबियत कर सकें, उनकी मजहबी तरबियत कर सकें, उनका जो है वो सोशल उनको जो है वो गाइडलाइन मिल सके। तो करिकुलम इसलिए भी हमें ज़रूरी है कि हम उनकी किरदार साजी करना चाहते हैं। किरदार साजी किस लिए करना चाहते हैं? हम उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम उन्हें अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं। और ये कैसे मुमकिन होगा? ये करिकुलम की बदौलत होगा। जिस तरह का करिकुलम होगा, अगेन मैं वही बात कहने लगा हूँ कि जिस तरह का करिकुलम होगा वैसा ही आपके लोग जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो करेक्टर इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। और वो कैसे हासिल हो सकता है? वो करिकुलम के जरिए हासिल हो सकता है। तो करिकुलम इस चीज़ के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। तो करिकुलम को डेवलप करना और प्लान करना इसलिए भी ज़रूरी है। आगे हमारे पास है नीड ऑफ करिकुलम में 6 नंबर पर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। ये सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड क्या है? Curriculum is able to satisfy educational, vocational and psychological needs of the students. किसी भी एक स्टूडेंट जो कि एजुकेशन लेने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है तो उसकी मेजरली 3 तरह की नीड्स होती हैं। एजुकेशनल होती हैं, वोकेशनल होती हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। और उन नीड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इसकी अब ये नीड्स हमारे पास फुलफिल करने के लिए हमें करिकुलम की ज़रूरत होती है। और करिकुलम को जब आपने डेवलप करना है, जब बनाना है, जब प्लान करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा जाता है। अब हमारे पास क्या है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से बहुत डिफरेंट है। उस जितने भी बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। और क्या है कि जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे उनके वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होंगे, वैरायटी ऑफ स्किल्स होंगी, वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ होंगी और उनका डिफरेंट हर एक का एप्टीट्यूड होगा, डिफरेंट एटीट्यूड होगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होंगी। तो जो करिकुलम है इन तमाम नीड्स को जो है वो फुलफिल करता है। हम इस तरह से डेवलप करते हैं, हम इस तरह से उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ये बुनियादी जो तज़ादात हैं उनकी शख्सियत के अंदर और उनके रवैयों के मतलब उनको सामने रखकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी हमें करिकुलम की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट 7 पर हमारे पास है क्राइटेरिया ऑफ सूटेबल टीचर्स। The curriculum mainly shows that what type of the teacher is needed in the school. करिकुलम ये डिसाइड करता है कि किस तरह के स्कूल के अंदर किस तरह के टीचर दरकार है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की है कि हम बच्चों की किरदार साजी करना चाहते हैं। किरदार साजी के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इस्लामाइज कर रहे हैं अपने करिकुलम को,
हमने उसके अंदर इस्लामियात को इंसर्ट कर रखा है। फिर ज़िंदगी को इस्लाम के कवानीन के मुताबिक चलाने के लिए जो वो इस्लामियात के सब्जेक्ट को लाजमी करार दिया गया है। अगर इस्लामियात का सब्जेक्ट लाजमी करार दिया गया है तो उसको पढ़ाने के लिए हमें किस तरह के साथ इकराम चाहिए? हमें वो लोग चाहिए होंगे जो इस्लामियात का नॉलेज रखते हैं, इल्म रखते हैं। आप ये यूं कह लें कि आपका अगर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इनोवेशन चाहते हैं, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपको ऐसे असातिज़ा इकराम दरकार होंगे जो साइंस के अलूम के अंदर महारत रखते होंगे। और हम यूं फिर कह सकते हैं कि अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी डिमांड क्या है कि हम इंजीनियर्स पैदा करना चाहते हैं, हम डॉक्टर्स पैदा करना चाहते हैं, हम किस तरह के इंसान पैदा करना चाहते हैं? या आप ये देखना चाहते हैं कि अगर एक बच्चे को 20 साल तक हम पढ़ाते हैं, 20 साल के बाद वो प्रोडक्ट हमारी किस तरह की होनी चाहिए, और जिस तरह के हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसी तरह के हमें एक्सपर्ट्स रिक्वायर होंगे। तो करिकुलम इसलिए भी ज़रूरी है कि करिकुलम हमें ये बताता है कि हमारे टीचर्स किस तरह के होने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स। करिकुलम सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि वो सिर्फ ये प्लान करे कि बच्चे ने क्या लर्न करना है। जैसे शुरू की स्लाइड्स में हमने देखा था कि हमें ये था कि हम वो एक तरफ जहाँ पर लर्निंग की बात कर रहा है वहाँ पर टीचिंग के बारे में भी हमें फुली गाइडलाइन फ्राहम करता है। तो करिकुलम इसलिए भी ज़रूरी है कि वो टीचर को गाइड करता है कि टीचर के पास टीचिंग मेथड्स कौन से होंगे, वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होगी, वो डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, वो हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड होगा। और टीचर को इस काबिल बनाता है क्योंकि करिकुलम एक गाइडलाइन है, प्लान है, एक डॉक्यूमेंटेड गाइडलाइन है जो कि बताती है टीचर को कि उसने कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कब पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है। तो करिकुलम हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके अंदर टीचर के लिए गाइडलाइन भी मौजूद है और वो टीचर को भी गाइड करता है कि आप किस वक्त किस तरह के लेसन के लिए और किस एज के बच्चों के लिए आप किस तरह का मेथड ऑफ टीचिंग सिलेक्ट करेंगे और आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। अब हमारे पास नंबर 9 पर है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या है? जब भी हम किसी कोई एक बच्चा स्कूल जाता है या किसी भी बच्चे को हम स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो उसका मकसद होता है इल्म हासिल करना। तो करिकुलम हमें इस बात के अंदर हमारी मदद करता है कि बच्चे की किस एज में कौन सी एबिलिटीज जो है वो डेवलप होनी चाहिए, कौन सी उसकी सलाहियतें जो है वो परवान चढ़नी चाहिए और किस तरह से चढ़नी चाहिए। क्योंकि करिकुलम हमारे पास जो है वो एक प्लान होता है हमारे पास कि किस एज में बच्चा क्या करेगा, कौन सी चीज़ें सीखेगा, किस तरह से सीखेगा, टीचर उनको कैसे सिखाएगा और आफ्टर ऑल उसकी लर्निंग कैसे होगी। जब लर्निंग होगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके इल्म के हासिल करने का ज़रिया बनेगा, क्योंकि बहुत सारी एबिलिटीज़ उसकी पैदा होंगी जो कि उसके इल्म हासिल करने का जो उसके अंदर उसको मदद देंगी तालीम हासिल करने में। तो करिकुलम हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें एक प्लान जहाँ तक सिस्टम प्रोवाइड करता है उसके साथ साथ हमें जो है वो प्लान नॉलेज भी फ्राहम करता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो करिकुलम हमारे पास है हमारी इस बात में हेल्प करता है कि वो हम बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक और उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक जो तरतीब शुदा इल्म है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर सके।
नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। करिकुलम again is a plan for the development of a learner's abilities. Those abilities can be physical, intellectual, social, cultural, moral, and spiritual, as well as religious and vocational abilities of the students. और सुटेबल करिकुलम हमारे पास वो होता है जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट का मवाद मौजूद हो, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ मौजूद हो कि वो इन तमाम एबिलिटीज को परवान चढ़ा सके। यूं हम कह सकते हैं कि करिकुलम हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारी मदद कर सके। यानी हम ये कहना चाहते हैं जहां पर एक तरफ हमारा जो करिकुलम है वो शख्सियत साजी पे हमारी मदद कर रहा है, वहां पर उसके अंदर मॉरल एबिलिटीज, मॉरल डेवलपमेंट उसकी होनी चाहिए, उसकी सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो, एक मतवाजन शख्सियत के तौर पर रूनमा हो। जब वो इस सारे प्रोसेस से कोई भी जो एक लर्नर है, कोई भी जो एक स्टूडेंट है, कोई एक इंडिविजुअल है, जब वो इस तमाम प्रोसेस से गुजर जाए तो वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी निकल कर सामने आए। लास्ट हमारे पास है रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन एजुकेशन। तो जो करिकुलम है, हमने पिछली लेक्चर के अंदर ये देखा था कि हमने कहा था कि करिकुलम इटसेल्फ मकसद नहीं है, लेकिन मकासद के हसूल का जरिया है। अब करिकुलम हमें ये गाइड करता है, हमें बताता है कि एजुकेशन के क्या ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं। क्योंकि जो करिकुलम होता है वो सोसाइटी का आईना होता है, किसी एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के जहनी सोचों के मुताबिक होता है। वो उस जगह पे रहने वाले लोगों की जहनी जहनी जितनी भी सिचुएशन है, जहनी जो हालत है, उसके बारे में आगाह करता है, उसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। और यूं कह सकते हैं कि उन तमाम जितने भी उस सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे होते हैं, जो वो करिकुलम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी जहनी सोचों की अक्कासी करता है। अब हम करिकुलम किस लिए बनाते हैं? ताकि लोग उसमें से इल्म हासिल कर सकें, अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सकें, अपनी शख्सियत की तामीर कर सकें। तो इसी तरह से करिकुलम जो है वो हमें ये सारी चीज़ें जब गाइड करता है तो उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उस वक़्त जब यहाँ पर जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेड है, कोई भी एक करिकुलम जो डेवलप किया गया और देन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हमें ये गाइड करता है कि वहाँ पर एजुकेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, लोग किस तरह से तालीम हासिल करना चाहते हैं, किस तरह की तालीम हासिल करना चाहते हैं, और किस तरह से हासिल करना चाहते हैं और कैसे हासिल करना चाहते हैं, उनकी विश एंड विल क्या है और वो किस तरह के लोग जनरेट करना चाहते हैं। और जो मॉडर्न हमारे पास एजुकेशन है, ये तो हमारे पास चलता ही इस तरह से है कि हमारे पास ये डिमांड करती है कि करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। एक तरफ हमारा करिकुलम इन चीज़ों की प्रोडक्शन का बायस बनता है और दूसरा हमें वो मतलूबा लोग जो है वो मुहैया करता है
जो हमें चाहिए होते हैं। तो 3 बातें इसके अंदर हैं। पहली बात तो यह है कि प्रोवाइडिंग सुटेबल नॉलेज। कोई भी एक करिकुलम वो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें सुटेबल नॉलेज फ्राहम करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोवाइडिंग सुटेबल अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। कि जो करिकुलम है, हमने जैसे पहले भी देखा है कि वो वेल सिलेक्टेड एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस का मजमुआ होता है, और वो इस बात के अंदर हेल्प करता है कि वो बच्चों की शख्सियत साजी कर सके, किरदार साजी कर सके, और वो किरदार, वो एक्शंस, वो बातें, वो एबिलिटीज़ तमाम सोशल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रोवाइडिंग होलसम इन्फ्लुएंस, के जो करिकुलम हमारे पास है, द करिकुलम शुड प्रोवाइड होलसम स्कूल प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग द डिजायरेबल बिहेवियर पैटर्न इन द पीपल्स, के वो बच्चों के अंदर उन तमाम किस्म की जो है वो एबिलिटीज पैदा कर सके जो उस सोसाइटी को रिक्वायर है, जो वहाँ के लोगों को रिक्वायर है, और उस जगह के लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये काम कर लें तो ये हमारी कामयाबी की रीजन बन जाएगा और कामयाबी की वजह बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। I hope you enjoyed the lectures. In case of any confusion, any problem, you can very freely can talk to me. Dial the number 0333428661 and contact me. I will appreciate if you will formulate and send me the questions. थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है, और अपने सवालात के लिए और कन्फ्यूजन के लिए मेरे से रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँगा। जज़ाकल्लाह।